ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے درود پاک کی فضیلت سے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب، اور وہ کس سے ہوتا ہے؟ ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے۔ تو آئیے کرتے ہیں آج کا سوال۔ جی آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، اسید بھائی موجود ہیں، حنبل بھائی موجود ہیں، حسان بھائی موجود ہیں اور عثمان بھائی موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو تعارف بھی کراتے ہیں۔ ہمارے جو سیدھا ہمارے پہلے جو ممبر ہیں جس کا نام ہے حسان بھائی، اور سیکنڈ ممبر ہیں ہمارے حنبل بھائی، اور تھرڈ ممبر ہیں ہمارے دانیال بھائی، اور فورتھ ممبر کون سے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حنین بھائی، ماشاء اللہ۔ مائک میں بتائیں، مائک میں بتائیں جی۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے جی۔ تو حنین بھائی بھی ہمارے فورتھ ممبر، اور دوسری ٹیم یعنی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہمارے ممبر ہیں عثمان بھائی، تو سیکنڈ ہمارے ممبر ہیں کون ہیں؟ اسید بھائی، اور تھرڈ ہیں ہمارے سعود بھائی، اور فورتھ کون ہے؟ اسید بھائی۔ ارے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم حسان بھائی کی جانب، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم بھی سنیں گے۔ جی حسان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، اللہ یا
قسمت کی گردش یوں قسمت کی گردش یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا لپٹ کے گلے لگے میں ملتزم سے لپٹ کے گلے لگے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا اللہ ارحم لنا الہی مقدر تو ایسا کر الہی مقدر تو ایسا کر الہی مقدر تو ایسا عطا کر الہی مقدر تو ایسا عطا کر کہ ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے ڈھیر لگاتا میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے آمین. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی ہاں مدرسۃ المدینہ سیگمنٹ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے آئیے پوچھتے ہیں قاری صاحب سے, بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال
آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب، اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کا آپ ہمیں مختصر سا فوراً بتائیے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ پیارا سیگمنٹ ہے اسلام فار کڈس کا، پہلا سیگمنٹ ہے جس میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اچھے انداز سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید سے پڑھنا ہے اور یوں ہی آگے بڑھنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الملک، اس کی آج آیت نمبر 19، اس کا آدھا حصہ پڑھیں گے، جس میں پہلے ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، پھر ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، پھر ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے بعد ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور سناتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور سنایا کریں۔ جی ہاں، جب آپ سنائیں گے تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید سے پڑھنا ہے۔ اب تجوید کیا ہے؟ جی یہ اکثر سوال ہوتا ہے، تجوید 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 کہتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لغوی معنی ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت کرنا۔ تو یہ تمام تجوید کے لغوی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جی ہاں، تو مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب مخرج کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے تو یہ مخرج ہوتا ہے، یعنی ہم نے ادا کیا با، تو ہمارے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملا تو با ادا ہو گیا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں فا، تو ہمارے اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، تو یہ اس کا مخرج ہو گیا۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کے مخرج سے بھی ادا کرنا ہے، اور اس میں صفات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حروف مستعلیہ موٹے حروف ہوتے ہیں، تو جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا کرنا ہے، اور جو باریک حروف ہیں ان کو باریک رکھنا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ تجوید سے پڑھنا کہلائے گا۔ تو آج آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، بار بار ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، سیکھ جائیں کہ مخرج کیا ہے، صفات کیا ہیں۔ تو مخرج کو بھی یاد کرنا ہے اور صفات کو بھی یاد کرنا ہے۔ جیسے کسی حرف کے اندر صفت تفشی ہوتی ہے، تفشی کس حرف میں پائی جاتی ہے؟ دانیال بھائی بتائیں گے۔ شین۔ شین کے اندر تفشی پائی جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح حروف صفیریہ بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں حروف صفیریہ؟ کون بتائیں گے یہاں موجود؟ جی ماشاءاللہ سعود رضا چھوٹے سے ہیں، جی بتائیے سعود رضا بھائی، کون سے حروف ہیں وہ؟ حروف صفیریہ کون کون سے ہیں بھائی؟ زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ سیٹی والے حروف ہیں، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ حروف مستعلیہ ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ایک حروف ہوتے ہیں ایکسٹرا موٹے حروف، وہ اور زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بعض قلقلہ والے حروف ہوتے ہیں، قلقلہ ہوتا ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان صفات کے ساتھ جب ہم حرف کو پڑھتے ہیں، یعنی مخرج سے بھی پڑھتے ہیں اور صفات کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ حرف صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی کہلاتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تو آپ تجوید سے پڑھنا سیکھیں، اچھے انداز سے سیکھیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 کا آدھا حصہ، جی ہاں کیونکہ بڑی آیت تھی اس لیے ہم نے اس کو آدھا رکھا ہے تاکہ آپ اچھے انداز سے اس کو پڑھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں، سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جی ہاں، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے اس آیت کے حصے کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کرسا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا. اب توجہ سے سن لیا تو اب توجہ سے سمجھنا بھی ہے، اور قرآن پاک جب پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی پیارے بچوں، یہاں موجود بچے جی انہوں نے آواز نکالنی ہے، زور سے پڑھنا ہے، اتنا زور سے کہ آپ کے کان جو ہے اچھے انداز سے اس کو سن لیں. جب اس کو اچھے انداز سے سن لیں گے تو کیا ہوگا، حرف آپ کا بہتر ہو جائے گا، حروف آپ کے درست ہو جائیں گے. تو کوشش کیا کرنی، آواز سے پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر پھر بسم اللہ بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. جی ہاں. اولم يروا الى الطیر. أولم يروا إلى الطير. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شروع میں ہے حمزہ. یہ حمزہ ہے یا الف ہے؟ لبیک. لکھا ہوا تو الف نظر آ رہا ہے. جی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے. کون بتائیں گے؟ دانیال بھائی ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. چلیں دانیال بھائی آپ بتائیے، یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ. یہ حمزہ ہے. جی تو یہ حمزہ ہے، تو یہ لکھا ہوا تو الف ہے، تو یہ الف ہے یا حمزہ؟ کیوں حمزہ کیوں ہے یہ بتائیے آپ. یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائے تو حمزہ آ جاتا ہے وہ، اور اگر اس کے اوپر جزم آ جائے تو بھی حمزہ. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر تو لکھا ہوا الف ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے الف لکھا ہوا ہے، مگر یہ الف نہیں ہے. عربی میں، عربی زبان میں یہ حمزہ ہو جاتا ہے جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یہ تینوں حرکات کوئی آ جائیں، یا دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں، یا جزم آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. دانیال بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے حمزہ ہمیشہ تحقیق سے ادا ہوتا ہے، خوب واضح ہوتا ہے، خوب اچھے انداز سے اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. واو کی ادائیگی، واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اب یہ واو ہے یا واو ہے یہ بھی بتانا ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے. جی سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی بتائیے. واو دونوں ہونٹوں کے گولائی سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اس کو واو پڑھیں یا واو پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ واو. واو یا واو؟ کیا کریں گے؟ ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ معروف پڑھنا ہے یا مجہول. معروف ہوتا ہے عربی طریقے کے مطابق اور مجہول ہوتا ہے عربی طریقے کے خلاف. تو ہم نے پڑھنا ہے عربی طریقے کے مطابق. جی دانیال بھائی آپ جواب دیں گے. واو پڑھنا ہے. واو. واو. جی ہاں واو پڑھیں گے. واو نہیں پڑھیں گے یہ مجہول ہو جائے گا. تو ہم نے واو پڑھنے سے بچنا ہے بلکہ پڑھیں گے واو. واو. مل کر پڑھیں واو. واو. ماشاءاللہ. جی ہاں دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور واو کی ادائیگی معروف رکھنی ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے. اور یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. جی ذرا غور سے دیکھ لیں گے تو یاد آ جائے گا. میم ساکن کے قاعدے ہیں یا نون ساکن کے قاعدے؟ کون بتائے گا؟ یہ بھی سعود بھائی بتائیں گے یا کوئی اور بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے، آپ کا نام بھی بتائیے اپنا. محمد حنبل. محمد حنبل بھائی. جی کون سے قاعدے ہیں یہاں؟ ادغام شفوی. لبیک. جی جواب غلط ہو گیا. جی عثمان بھائی. صرف ادغام. صرف ادغام. یہاں پر بھی جواب غلط ہو گیا ہے. ادغام جی
कौन बताएगा? हसन भाई से पूछ रहे हैं, चले हसन भाई बताइए। इजहार शफवी। इजहार शफवी हो रहा है। मोहम्मद हम्बल भाई से भी गलती हो गई, उस्मान भाई से भी गलती हो गई, कोई मसला नहीं, हो जाती है, मगर तवज्जो रहेगी तो गलती नहीं होगी। तवज्जो रखना है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ समझना, तवज्जो के साथ पढ़ना और तवज्जो के साथ सुनाना। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ हो रहा है इजहार शफवी। तो इजहार शफवी क्यों हुआ? हसन भाई ये बताइए। मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई दूसरा हर्फ आ रहा है। कौन सा हर्फ आ रहा है? या आ रहा है। या आ रहा है, जी हाँ, नजर आ रहा है ना जी। तो या आ रहा है। तब मीम साकिन के बाद अगर बा होता तो हो जाता, क्या होता? अपने दानियाल में बताएंगे क्या होगा? इख्फा शफवी। और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम होती तो क्या होता? इदगाम शफवी। जी हाँ, ये कायदे हैं कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, इख्फा शफवी। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार शफवी होता है। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर इजहार शफवी होगा और गुन्नान नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। या का मखरज कौन बताएगा? बड़ा इजी है, बहुत आसान। जी सऊद भाई ने हाथ खड़ा किया, देख ले, सोच ले सऊद भाई। चले अभी वापस नीचे कर लिया, चले सोच रहे हैं, सोचें। दानियाल भाई याद है आपको? सुनाने के तैयार है? देख लें, चले बताएं। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। माशाअल्लाह, ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए, ये कितने हुरूफ हैं जो यहाँ से अदा होते हैं? जी ये भी आप ही बताएंगे, बताएं। 3। कौन कौन से? जीम, शीन, या। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और इनको क्या कहते हैं ये बताएंगे कौन? जी आप बताएंगे। हुरूफ शजरिया कहते हैं। माशाअल्लाह, तीनों जवाब आपने दुरुस्त दे दिए हैं। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे अंदाज से समझना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह, हुरूफ शजरिया 3 हैं, जीम, शीन और या। जब ये वस्ते ज़बान और वस्ते तालु मिलते हैं तो ये हुरूफ अदा होते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ बच्चे या को पढ़ते हैं या। क्या पढ़ते हैं? या। ये गलत है, ये नहीं पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे यरऊ। क्या पढ़ेंगे? यरऊ। 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 बाज़ बच्चे पढ़ते हैं यरऊ। क्या पढ़ते हैं? यरऊ। तो यरऊ गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? यरऊ। मिल के पढ़े यरऊ। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चे, रा पर ज़बर आने की वजह से रा को क्या करेंगे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन? जी यहाँ बच्चे बताने के लिए तैयार हैं। आप भी बताना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं कि जब रा पर ज़बर आ जाए, पेश आ जाए, रा को क्या करेंगे? या रा साकिन हो, उससे पहले ज़बर और पेश आ जाए तो रा को क्या करेंगे? जी यहाँ मौजूद बच्चे बताने के लिए तैयार हैं। हमारे छोटे सऊद भाई बताएंगे। सऊद भाई बताइए। रो को पर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे जी, ज़बर और पेश दोनों की सूरत में। जी। माशाअल्लाह। और ये बताइए कि रॉस यहाँ वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर है, ये कौन कायदा बताएगा? जी इजी कायदा। वाव लीन हो रहा है। सोच, बगैर सोचे समझे आपने बता दिया। जी। बगैर सोचे समझे? जी। या सोचा था? नहीं सोचा। सोचा नहीं था। अच्छा आता है ये आपको? जी। आता है ये कायदा? जी। माशाअल्लाह। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। जी हाँ, वाव साकिन से पहले ज़बर आने की वजह से वाव लीन होता है और वाव लीन को पढ़ते हैं बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ। अच्छा वाव साकिन उससे पहले ज़बर आए तो वाव लीन, और वाव साकिन उससे पहले अगर पेश आ जाए तो कौन सा कायदा लगता है? माशाअल्लाह। अभी आपसे पूछा भी नहीं और आपने पहले ही बता दिया। माशाअल्लाह। जी हाँ, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें सऊद भाई छोटे से हैं और इन्होंने वावलीन का कायदा भी याद कर लिया है। हरकत रा पर ज़बर आने की वजह से रा पुर होता है, ये भी। और इसके अलावा देखिए वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो भी ये भी कायदा इन्होंने याद कर लिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर आने की वजह से वावलीन होगा, नरमी से अदा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमज़ा को हमने क्लियर अदा करना है तहकीक से, और इसके नीचे ज़ेर है और यहाँ लाम जो है तो से मिलाएंगे और पढ़ेंगे इलत
तोयरी, इला तोयरी, मिल कर पढ़े इला तोयरी, इला तोयरी। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जब किसी हर पर तशदीद आ जाए, पहले तो ये बताइए तशदीद आ जाए तो कैसे पढ़ते हैं जी? ये क्या सऊद भाई बताएंगे, कोई और नहीं बताएंगे? चलिए दानियाल भाई से पूछ लें। 2 दफा, 2 दफा। पहले वाले हुर्फ से मिलाकर और दूसरी दफा अपनी हरकत के मुताबिक मिलाकर पढ़ा जाता है। माशाल्लाह, पहले वाले हर्फ की हरकत से मिलाकर और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जब मुशद्दद हर्फ आता है तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। और दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। और ये बताइए तो ये मखरज क्या है? इसका मखरज किसी को याद है? मखरज मुश्किल है, जहन में नहीं। तो देखें, अदा करें तो 3 हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। 3 हुरूफ, तो भी है और उसके साथ दाल भी है और इसके साथ एक और हर्फ भी है, ता भी है। और इनको कहते हैं हुरूफे, मिलकर बोले क्या कहते हैं इनको? हुरूफे नितोइया कहते हैं। माशाल्लाह। और इनका मखरज है प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़बान का सिरा, यानी ज़बान का आगे का सिरा होता है ना, वो जब ऊपर के सामने वाले दांत होते हैं ना बड़े, उनकी जड़ में लगाते हैं तो अदा होता है ता, दाल और तो यहाँ पर है तो। क्या है बच्चों? तो क्या है? तो यानी तो को क्या करना है? मोटा रखना है। और मोटा नहीं, एक्स्ट्रा मोटा रखना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा मोटा करना है। माशाअल्लाह। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ कितने हैं? 4। माशाअल्लाह। दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। कौन कौन से ये भी बता दीजिए। दो, तो, ज़ो। अभी भी ज़ो है, थोड़ा सा नाक में जाएगा, थोड़ा सा तो नहीं जाएगा ना। सौद, दौद, तो ये पढ़ेंगे तो। अगर हम पढ़े तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही है, तो नाक में आवाज नहीं जाएगी। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, या साकिन से पहले जबर भी है, तो के ऊपर जबर है। और या साकिन है, कौन सा कायदा है? सऊद भाई को तो याद है, मगर अभी सऊद भाई से नहीं पूछेंगे, हम किसी और से पूछते हैं। जी आप बताइए, माइक लीजिएगा, नाम बताइए अपना। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई बताइए कौन सा कायदा है? या साकिन से पहले जबर हो तो यालीन होगा। यालीन हो, या मद्दा कहना चाह रहे हैं? यालीन हो, सोच लें। या मद्दा हुआ। या साकिन से पहले जबर हो तो या मद्दा हुआ। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या साकिन से पहले जबर हो तो यालीन होगा। यालीन होगा। जी हाँ, या साकिन से पहले जबर है, यालीन है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे मगर दुरुस्त कर लिया। माशाअल्लाह। जी हाँ, मोहम्मद हुसैन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों याद रखिए, या साकिन उससे पहले ज़ेर आ जाए तो होता है या मद्दा, और या साकिन हो उससे पहले जबर आ जाए होता है या लीन। या लीन को पढ़ते हैं बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, नरमी के साथ। और या मद्दा को पढ़ते हैं एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। माशाअल्लाह। और रा के नीचे ज़ेर आने की वजह से रा को माशाअल्लाह, मिलकर बोले रा को माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फौक़हुम, मिलकर पढ़े फौक़हुम। वाव साकिन से पहले जबर। जी ये कायदा, यहाँ तो या साकिन था, यहाँ वाव साकिन है, उससे पहले जबर। तो ये कायदा बताएंगे कौन? जी आप बताएंगे। जी माइक इनको दीजिएगा। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जी हाँ, माशाअल्लाह। और अपना नाम भी बताइए आप। मोहम्मद हुनैन। मोहम्मद हुनैन। हुनैन। जी मोहम्मद हुनैन भाई, प्यारे बच्चे बताइए यहाँ कौन सा कायदा है? वाव लीन। वाव लीन है। सोच लें, वाव साकिन से पहले जबर आए तो वाव लीन होता है। आपने जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। मोहम्मद हुनैन भाई ने सही फरमाया कि यहाँ वाव लीन का कायदा होगा, क्योंकि वाव साकिन से पहले जब कभी जबर आए वाव लीन होता है। और वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो कौन सा कायदा होगा? ये बताएंगे, ये भी आप ही बताएंगे। चले हुनैन भाई बताइए। मोहम्मद वाव मद्दा। वाव मद्दा होगा। माशाअल्लाह। ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया है कि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो वाव लीन होता है। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है ये कौन बताएगा? जी दानियाल भाई से पूछ लें। दानियाल भाई बताइए फ़र्क क्या होता है? अगर वाव लीन होगा तो
बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जी, वाव लीन होगा तो वाव बगैर झटका दिए बगैर खींचे मारूफ पढ़ेंगे। जी हाँ, नरमी से पढ़ेंगे। और वाव साकिन से पहले पेश आए वाव मद्दा हो तो क्या करेंगे? एक अलिफ यानी 2 रकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, जी हाँ, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। जी, सब कह दीजिए जिक्र की नियत से सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, इन्होंने पूरी डिटेल के साथ वाव लीन और वाव मद्दा बता दिया है। तो आप भी कोशिश करें मद्दी चैनल के नाज़रीन कि अच्छे अंदाज से वाव लीन भी याद करें, वाव मद्दा भी याद करें, या लीन भी याद करें, या मद्दा भी याद करें, अच्छे अंदाज से याद करें और आगे बढ़ते चले जाएं। माशाअल्लाह। और ये बताइए कि काफ कौन से उरूफ में से है? काफ की अदायगी का मखरज क्या है? कौन बताएगा? मखरज भी बताना है। जी, मखरज भी याद आ गया सऊद भाई? और कोई? सोचें। जी, ये दानियाल भाई अभी तो आपसे पूछा तो हम पूछ लेते सऊद भाई से। जी सऊद भाई बताइए। कौफ का मखरज है जुबान की जड़ और ताल्लुके नरम हिस्से से। माशाअल्लाह, सही जवाब दे दिया है बिल्कुल कि जबान की जड़ और ताल्लुका नरम हिस्सा कौफ का मखरज है। अच्छा दानियाल भाई, कौन से उरूफ में से ये? उर्फ़े लहविया, उर्फ़े लहविया में से और उर्फ़े मुस्तालिया में से, उर्फ़े कलकला में से भी काफ। माशाअल्लाह, हमारे दानियाल भाई ने भी जवाब दुरुस्त दिए हैं। माशाअल्लाह, काफ उर्फ़े मुस्तालिया में से भी है, उर्फ़े लहविया में से है। उर्फ़े लहविया कितने हैं? कौन बताए? सऊद भाई बताइए। सऊद भाई बताइए। तो कौन कौन से? काफ और कौफ। ये काफ और कौफ होता है। होंठ गोल करेंगे या बगैर गोल किए? ये बगैर गोल। तो आप कौफ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कौफ। बगैर होंठ गोल किए पढ़े, मोटा करके कौफ। कौफ। जी हाँ, कौफ। देखिए अदा हो गया। अगर आप होंठ गोल करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? वाव भी आ जाएगा। कैसे? कौफ, वाव आ रहा है ना, तो वाव की अदायगी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो पढ़ना है कौफ। माशाअल्लाह, सऊद भाई पढ़ के सुनाएंगे। कौफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ, इसी तरह अच्छे अंदाज से पढ़िए और आगे बढ़िए। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर एक कायदा है। आगे जब मिलाते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं आयत को, तो मीम साकिन के कायदों में से कायदा है या नून साकिन के कायदों में से कायदा है? ये कौन बताएंगे? सोच समझ के बताएंगे। मोहम्मद हम्बल भाई से पूछ लें। जी हम्बल भाई बताइए। इजहार शफवी। इजहार शफवी होगा। जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है, मगर बताइए इजहार शफवी क्यों होगा? क्योंकि हुर्फ बा और मीम के अलावा कोई और सा हुर्फ आ रहा, स्वाद आ रहा है। माशाअल्लाह। किसके बाद? मीम साकिन के बाद। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा आगे सौद आ रहा है, इस वजह से यहाँ होगा इजहारे शफवी। माशाअल्लाह। और इजहारे शफवी में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन गुन्ना नहीं करेंगे। माशाअल्लाह। और ये बताइए मीम की अदायगी, मीम का मखरज क्या है? मीम कहाँ से अदा होता है? मीम की अदायगी का मकाम क्या है? जी सोच रहे हैं। मीम, देखिए मीम आपने अदा किया, मीम अदा हो गया। आप पढ़ते हैं अम, तो ये कहाँ कौन से हमारा मुंह का हिस्सा यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ और ये हर्फ अदा हुआ। जी माशाल्लाह। टीम ए से 2 हाथ हैं और टीम बी से भी 2 हाथ हैं। हम पूछते हैं मोहम्मद उस्मान भाई से। जी उस्मान भाई। दोनों होठों के तर हिस्से से। दोनों होठों के तर हिस्से से है। हुसैन भाई। दोनों होठों के खुशक हिस्से से। दोनों को होठों के खुश्क हिस्से से। माशाल्लाह, हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। उस्मान भाई ने थोड़ी जल्दी कर दी, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के सोचना भी है, समझना भी है और अच्छे अंदाज से जवाब देना है। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, याद कर लें, याद कर लेंगे। अब याद हो गया उस्मान भाई को कि होठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होता है और होठों के तर हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? जी कौन सा? उस्मान भाई ने बता दिया, बा। जी हाँ, बा ही तो अदा होता है होठों के तर हिस्से से और मीम अदा होता है होठों के खुश्क हिस्से से और होठों की गोलाई से अदा होता है वाव और होठों के ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होठ के तर हिस्से से अदा होता है फा। जी हाँ, ये फा अदा होता है। माशाअल्लाह, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। ये मद, जी ये मद कौन सी है?
आगे पढ़ लेते हैं पहले इसको। صافات ويقبضن। अच्छा, इसको वयक़बिदन नहीं करना, वयक़बिदन, यानी दौद को भी साकिन रखेंगे और नून को भी साकिन रखेंगे। अच्छा जी, अब ये बताइए कि ये सौद पर जो मद है, ये मद कौन सी है? जी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जी सऊद भाई बताना चाहेंगे? जी। सऊद भाई बताइए। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल, जवाब गलत हो गया है। हसन भाई बताएंगे। मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए हसन भाई कि मद्दे लाजिम आपको कैसे पता चला कि ये मद्दे लाजिम है? क्योंकि खड़ी हरकत उर्फ़ मद्दा के कायम मकाम होती है जी। और यहाँ पे उर्फ़ मद्दा के बाद खड़ी हरकत के बाद तशदीद आ रही है। तशदीद आ रही है, तशदीद आ जाएगी तो खड़ी हरकत के बाद तो मद्दे लाजिम हो जाएगा। जी जी हाँ, थोड़ा और इसकी वजाहत कौन अच्छे अंदाज से करेगा? जी चलें, ये मैं और बता देता हूँ। माशाअल्लाह आपने अच्छी वजाहत की, थोड़ा और अच्छे अंदाज से। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, अगर आप भी ये जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं भी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मद्दे लाजिम कब होता है। चलें आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा ये एंड पर। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में इसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़ा पर तशदीद आने की वजह से ज़रा रुक कर अदा करेंगे और फ़ा पर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ कौन सा कायदा है ये बताइए? जी यहाँ पर एक कायदा है, टीम ए से 2 हाथ हैं, टीम बी से 1 हाथ है और छोटे मुन्ने ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हम पूछते हैं टीम ए से। जी मोहम्मद हम्बल भाई, मोहम्मद हम्बल भाई बताइए यहाँ कौन सा कायदा है? इदगाम। इदगाम कौन सा? इदगाम नून साकिन के बाद। लबाइक। जी दानियाल भाई कंप्लीट कीजिए। माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना है। हमारे मोहम्मद हम्बल भाई ने जवाब तो दुरुस्त दिया, इदगाम। जी इदगाम सही है, मगर इदगाम भी 2 तरह का होता है। इदगाम माल गुन्ना होता है, इदगाम बिला गुन्ना होता है। और कंप्लीट कर दिया आप ही की टीम के, टीम ए से दानियाल भाई ने। जी हाँ, इदगाम माल गुन्ना होगा, 1 अलिफ का गुन्ना भी अदा करेंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ इदगाम माल गुन्ना क्यों हुआ, कौन बताएगा? दानियाल भाई बताएंगे? हसन भाई बताएंगे? जी हसन भाई बताइए। तनवीन के बाद उर्फ़ अरमलून में से वाव आ रहा है। जी हाँ, नून साकिन या तनवीन से जब कभी उर्फ़ अरमलून में से यहाँ वाव आने की वजह से इदगाम माल गुन्ना हुआ है। और याद रखिए जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून ये 4 हुरूफ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होता है। और रा और लाम आ जाए तो क्या होगा? जी दानियाल भाई इदगाम बिला गुन्ना होगा। ये भी आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। वाव पर ज़बर है, खींचना नहीं है। और या को जब काफ से मिलाएंगे तो एक कायदा, उस कायदे का नाम टीम बी से हम पूछते हैं। सोच लें जी, सोचें। सऊद भाई बताएंगे? जी। सऊद भाई को याद है? जी बताइए। यहाँ पे हरूफे कलकला में से कौफ आ रहा है तो कलकला होगा। कलकला होगा। कलकला क्यों हो रहा है, क्या वजह है? क्योंकि कलकला में से कौफ आ रहा है। कौफ तो कलकला में से कौफ तो आ रहा है, मगर कौफ यहाँ पर भी आया तो हमने कलकला नहीं किया था। यहाँ कलकला क्यों किया? वो साकिन है तो इसीलिए, कौफ साकिन है ही नहीं तो इसीलिए। माशाअल्लाह। जी हाँ, उर्फ़े कलकला जब साकिन होते हैं तो कलकला होता है। माशाअल्लाह। सऊद भाई ने बताया कि यहाँ साकिन और वहाँ साकिन नहीं है, इसलिए कलकला वहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कलकला होगा कि यहाँ पर काफ साकिन है। और जब उर्फ़े कलकला साकिन होते हैं तो कलकला होता है, आवाज़ खूब लौट कर वापस आती है। माशाअल्लाह। और कलकला करेंगे वयको 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 बिद। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काफ रुफ़े मुस्तालिया में से भी है और रुफ़े कलकला में से भी है। और काफ का मखरज है ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, ये बताइए
दौद, जब बा को दौद से मिलाएंगे तो दौद की अदायगी करनी है अच्छे अंदाज से। कुरान पाक का सबसे मुश्किल हर्फ कौन सा है? कौन? दौद ही है। माशाअल्लाह, जी हाँ, कुरान पाक का सबसे मुश्किल हर्फ है ये दौद। इसकी अदायगी जब आप इस पर मेहनत करेंगे, अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, तो आप इसको अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दौद का मखरज और ये कौन से हर्फ से है? जी, किसी को याद है? जहन में नहीं आ रहा, चले बता देते हैं। दौद का मखरज है ज़बान की करवट, ज़बान का बगली किनारा, करवट जो है, जब आप ऊपर की दाढ़ों की जड़ों में लगाते हैं तो आपसे अदा होगा दौद। क्या अदा होगा? उल्टी तरफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी तरफ से भी कर सकते हैं, और बैक वक्त दोनों तरफ भी ज़बान लगाकर आप दौद को पढ़ सकते हैं। और ये 5 दाढ़ें उल्टी तरफ, अगर एक तरफ से अदा करेंगे तो 5 दाढ़ों की जड़ों को इस्तेमाल करना है, और अगर सीधी तरफ से करते हैं तो भी 5 दाढ़ें, और अगर बैक वक्त करेंगे तो 10 दाढ़ों की जड़ों से फिर ये हर्फ अदा होगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। नून को यहाँ पर साकिन रखना है, ये भी दौद की अदायगी भी क्लियर रखनी है, और नून को भी साकिन रखना है, यानी नून की आवाज़ भी आएगी, दौद भी साकिन रहे, कलकला भी ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। पढ़ेंगे वयक़बिद। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़्फ़ातिन वयक़बिद्न। माशाअल्लाह। और ये भी बता देते हैं कि मद्दे लाजिम कब होता है। याद रखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी हुर्फ़े मद्दा के बाद या हुर्फ़े लीन के बाद जब कभी सुकून असली आ जाता है, जी हाँ, सुकून असली जज़म या तशदीद की सूरत में होता है, तो यहाँ पर जो है तशदीद है, और हर तशदीद वाले हर्फ के अंदर एक साकिन छुपा हुआ होता है। जी हाँ, जब कभी हुर्फ़े मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद या हुर्फ़े लीन के बाद सुकून असली आ जाए तो वहाँ होता है मद्दे लाजिम। जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स की जाने। जी, मेरा नाम फातिमा बतूल है, मैं दारुल मदीना की क्लास केजी में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 5 साल है, मैं कराची से पढ़ कर रही हूँ। आज मैं आपको आज के सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब ये है, क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब बताया और जवाब बताया। क़यामत का दिन 50,000 साल यानी 50,000 ईयर्स का होगा, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, मेरा नाम नमान है, मैं जिला नीमचा का दर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। क़यामत का दिन 50 साल का दिन है। जी माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये 50 साल नहीं, ये 50,000 साल, 50 नहीं है, 50,000 ईयर्स है। तो आपने इसको दुरुस्त करना है और फिर इंशाल्लाह कॉल रिकॉर्ड करवानी है। जी, मेरा नाम मुस्कान फातिमा है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है, क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने भी सवाल का जवाब बताया। क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान तारिया है, मैं जिला नीमचा का दर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है, क़यामत का दिन 50 साल का होगा। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आपसे भी गलती हो गई। ये 50 नहीं है, 50,000 है, यानी 50,000 ईयर से 50 नहीं है, तो आपने इसको दुरुस्त करना है। जी, मेरा नाम उम्मीद हुआ है, दिशा पुजाना से कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि 50,000 साल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब बताया और जवाब बताया। 50,000 साल का क़यामत का दिन होगा, और आपका जवाब दुरुस्त है। जी, नाम के नीचे फातिमा है, मेरा अच्छा कारी साहब। मैं आपको उर्फ़े लविया बताऊंगी। उर्फ़े लविया 2 है, वो ये है, क़ाफ़ काफ़
माशाअल्लाह, कनीस फातिमा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए और इसी तरह आप कायदा भी याद करें, कवायद भी याद करें, कुरान पाक भी पढ़ें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मैं खिचीवाला से सैयद अहमद रजा बात कर रहा हूँ। क़यामत का दिन 50,000 साल लंबा होगा। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब बताया और जवाब बताया 50,000 साल का दिन होगा। माशाअल्लाह। जी अच्छे मुबीन भाई और अच्छे कारी साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। कारी साहब, आप कैसे हैं? और आप जब नहीं आते तो मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आज मैं आपको कल वाला सबक सुनाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बताएं मैंने कैसा सुनाया? जी माशाअल्लाह। जी हाँ, प्यारी बच्ची ज़ैनब मुनीर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको दारेन की खुशियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो से पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ मौजूद बच्चे भी तवज्जो से पढ़ेंगे और आपने भी पढ़ना है और सुनाना भी है। जिस तरह आप सुनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे अच्छे अंदाज से सुनाएंगे तो आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस आयत को तवज्जो के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़्फ़ातिन व यक़बिضन। 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 माशाअल्लाह, कोशिश की आपने अच्छे अंदाज से पढ़ने की। इसी तरह अच्छे अंदाज से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम आगे अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं हदर और तरतील के साथ। तो तवज्जो के साथ हदर और तरतील पढ़ना है। यहाँ मौजूद बच्चे जो नात ख़ां बच्चे इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़्फ़ातिन व यक़बिضन। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. माशाअल्लाह, अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
माशाअल्लाह। माशा अल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ ही हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम पहुंचा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की न दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। जी हाँ, बच्चों की महफिल-ए-नात बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। इसमें हमारे साथ कुछ नातख़्वाह मौजूद हैं और वो हमें सुनाते हैं कलाम। आइए बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे हसन भाई हमारे लिए कौन सा कलाम तैयारी कर रहे हैं। जी वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। माशाअल्लाह। जी हुसैन भाई माइक। वो कमाल हुस्ने हुजूर है। माशाअल्लाह। जी हम्बल भाई। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। जी उस्मान भाई। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं हुसैन भाई की जानिब। जी वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمارے حسین بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو مدینہ منورہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں حنبل بھائی کی جانب۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماغ نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو ماغ نبوت ہے، جلوہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماغ نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو ماغ نبوت ہے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی، کر آنکھ بھی نورانی، ہے جلوہ جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، ہے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی گئے تیرا پانی، دانا ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، شمع رسالت ہے، عالم پروانہ۔ ماشاء اللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سربت ہے، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سربت ہے، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں
घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो फूल बन जाते हैं अंगारों के फूल बन जाते हैं अंगारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के जानो दिल तेरे कदम परवार 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 क्या नसीब है तेरे यारों के क्या नसीब है तेरे यारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के सिद्को अदलो करमा हिम्मत में 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 चार सू शोहरेंगे इन चारों के चार सू शोहरेंगे इन चारों के बगैरे तस्लीम अली मैदान में 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 सर झुके रखते हैं तलवारों के सर झुके रखते हैं तलवारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के कैसे आकाओं का मैदा हूँ रज़ा 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 बोल वाले मेरी सरकारों के बोल वाले मेरी सरकारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के सर झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं हसान भाई की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی 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 سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تار کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تار کھلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونر میں انبیاء تاجدار ملک کونر میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تار کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تار کھلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اکبر مان لم نشرح لك صدرك 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 منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك 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 اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك 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 منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك 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 جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے آقا کا امام مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی داڑھی
लबगाए मुबारक लबगाए मुबारक दंदान मुबारक दंदान मुबारक सीना मुबारक सीना मुबारक मरहबा वो दस्ते मुबारक मरहबा वो दस्ते मुबारक मरहबा दंदान मुबारक मरहबा दंदान मुबारक मरहबा नालेन मुबारक मरहबा सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह मुज़म्मिलो यासीनो मुद्दस्सिरो ताहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा मुज़म्मिलो यासीन मुद्दस्सिरो ताहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा क्या शान है क्या शान है उसकी जो उम्मीद कभी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है वो मक्की मदनी 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 अल अरबी है वो मेरा नबी नबी मेरा नबी नबी मेरा नबी है वो इसका नबी उसका नबी सबका नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी 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 वो मेरा नबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अहमद रोजा है, मैं कुरंगी से बात कर रहा हूँ। आज मैं अफसान भाई को चैलेंज दूंगा, ये वाली नात सुना दें। किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं सान भाई की जानिब। जी सान भाई, आप हमें इस कलाम की दो शेर सुना दें। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए,
लगाऊं और लोग किस से लगाऊं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाऊं हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाऊं आपके होते सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त इख्तिताम पहुंचा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।